Fine. Yesterday we have seen the assumptions of ADS approach, right? So there are four assumptions. I'm just revising. The price level fixed है economy में. It is not going to change. The second is the theory is for the short run theory. There is no government. जैसे मैंने बताया, there are only two sectors, right, in this entire economy. That is the household sector and the firm sector. The last is there is no foreign trade, right? The economy center is closed. हमने ये भी देखा explanation में कि under the short run fixed price, your ex ante aggregate demand is a sum of ex ante consumption and ex ante investment. यानी planned aggregate demand, right? Planned consumption, planned investment से बना हुआ है, right? Apart from that, equilibrium level of national income is determined by that point where aggregate demand is equal to aggregate supply, right? तो हमने symbolical ये भी समझा था कल, right? कि AD should be equal to AS. In other words, consumption plus investment जो AD को represent करता है should be equal to consumption plus saving जो AS को represent करता है. Now today, what we are going to see is the derivation of ADA and AS approach. ये aggregate demand and aggregate supply कैसे define और derived होता है. Equilibrium is a graphically shown figure, right? तो ये ग्राफ में मैंने इनकम लिया है एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लिया है कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट. तो ग्राफिकली हम उसको कैसे दिखा सकते हैं? So we know that aggregate demand, that is C plus I, is nothing but the aggregate demand curve, right? It is a vertical summation of C and investment, that is consumption and investment. और हमको ये पता है कि it is a positive slope, right? Originating from the y-axis, क्यों y-axis? Because we know that कि इतना कुछ पार्ट जो है वो autonomous consumption पे छोड़ देते हैं. We also know that 45-degree line है AS line, aggregate supply line, और national income curve is sum total of the consumption and saving, वो C plus S का sum total है, और इस पॉजिटिव स्लोपिंग लाइन 45-degree line from the origin से 45-degree line ऊपर जा रही है. Now we know that कि ये दोनों एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और उसी से हमको क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम. दैट इज पॉइंट E. So point E is nothing but it is an equilibrium point. Just a minute, sorry. Just a minute. Okay, 1 minute. Let me share. So we know that equilibrium is a point, E point, the point of equilibrium or the point of effective demand, जहाँ पे AD is equal to AS है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि C plus I is equal to C plus S. ये क्लियर हो रहा है? यानी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हमने डिराइव कर सकते हैं कि AD और AS इंटरसेक्ट हो सकता है, राइट? एंड दे कैन रीच इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E. यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. Right. Now, equilibrium occurs when the planned spending equals to planned output. उसका मतलब ये होता है, ये AS क्या दिखाता है हमको? आउटपुट दिखाता है ऑल द टाइम. और AD क्या दिखाता है? स्पेंडिंग, राइट? डिमांड जितना करेंगे हम इतना स्पेंड करेंगे, राइट? सो AD एंड AS हमको ये दिखाते हैं कि प्लान स्पेंडिंग और प्लान आउटपुट इक्वल होना चाहिए. इट्स इकोनॉमिक मीनिंग इज दैट व्हाट कंज्यूमर डिसाइड टू स्पेंड, जो कंज्यूमर ने स्पेंड करने की चाहिए यानी डिमांड करना चाहा, is equal to what producers produce in the market, that is AS. This is a stable equilibrium. It is less than full employment level. ये stable equilibrium है और ये full employment level पे होना जरूरी नहीं है. It can achieve at a less than full employment level. हम समझेंगे ये full employment level पे होना क्यों जरूरी और क्यों नहीं जरूरी है, right? Next session में. But today we are going to understand that this OI level जो आप देख रहे हो, OI level यानी जो इनकम हम जनरेट कर रहे हैं, right? This is OI level, the equilibrium level of national income. There is no further increase or decrease in income. इसमें ज़्यादा increase और decrease नहीं हो रही है income में. And this is the maximum income, or we can say this is the income where producers and consumers both are happy, both are at equilibrium, both are at rest.
They don't want to produce more and they want to demand more. किसी को ज़्यादा produce भी नहीं करना है और दूसरे को ज़्यादा demand भी नहीं करना है. Both are at equilibrium. So we get a point EY, that now this EY is nothing but this is the effective demand given by the point of equilibrium where AD is equal to AS, right? और ये EY point क्या है? It says कि इतना ही consumption हो रहा है, right? Economy में, right? Now the thing is, what will happen, right, when AD is not equal to AS? So that is an adjustment mechanism. क्या होगा? तो केन्स बोलते हैं कि अगर AD और AS नॉर्मल इक्वल होना ही चाहिए, राइट, और वो ऑलवेज हो ही जाता है, तभी भी आपको एक प्राइस डिस्कवरी होती है मार्केट में. तभी आपको जो गुड्स और सर्विसेज आप जो बनते हैं, राइट, वर्ल्ड ओवर, और वो आपको जिस भाव में मिलते हैं, वो भाव कैसे डिसाइड होता है? बिकॉज AD इज इक्वल टू AS, और ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है. अगर नहीं होगा तो क्या? सवाल ये भी होता है कि अगर ये एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई से इक्वल नहीं होगी तो क्या, राइट? सो व्हाट विल इज गोइंग टू हैपन? सो लेट्स again I have take a diagram. Again I am drawing the AS curve and I am intersecting with the AD curve, and I know that there is an equilibrium where AD is equal to AS. But यहाँ पे एक चीज लिखी है ऊपर टेबल में, जरा देखो बॉक्स में. Any deviation from this equilibrium level of income with the given AD and AS curves will be unstable. उसको unstable बोला जाएगा. और दो unstable condition है, right? Two unstable such conditions. Number one, हम समझते हैं. First condition, AD is less than AS. क्या होगा अगर AD नीचे होगा AS से? जो हम देख सकते हैं ये ग्राफ में, the situation is so by CN line. मैंने CN line को एक प्लॉट किया है जहाँ पे C AS ऊपर है और N नीचे है, राइट? आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर. This is CN line in figure. At income ON, income कितनी है हमारी? ON है, राइट, पूरी है. At income of ON, AD is equal to MN. एग्रीगेट डिमांड कितनी है? देखो डिमांड का ग्राफ M को कट करके जा रहा है M पॉइंट पे, तो ये MN तक की है, राइट? सो एग्रीगेट डिमांड इज MN एंड एग्रीगेट सप्लाई इज CN. वो C से N तक है, आप देख सकते हो. It is clear that aggregate supply is more than aggregate demand, और इसीलिए हमको CM का एक्सेस सप्लाई मिल रहा है, देख सकते हो आप, राइट? मैंने ब्रैकेट करके ग्राफ में दिखाया है. इट इज एन एक्सेस सप्लाई. आर यू गेटिंग दिस? दिख रहा है सबको एक्सेस सप्लाई? Yes, CM. sir. Right. Now this situation the economy will face recession. क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, गुड्स बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड करने वाले नहीं. So what is going to happen? There will be unsold stocks, right? Unsold stock of goods पड़े रहेंगे. The producer will reduce the use of factors of production and cut down the production level in the next time period. लोग reduce कर देंगे और इससे क्या होगा? This will reduce the income level from ON to OY, right? तो ये इनकम जो ON तक की थी वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? OY तक की हो जाएगी. क्लियर? क्यों? क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो रहा है इसीलिए, और इसीलिए नेक्स्ट टाइम पीरियड में लोग अपना प्रोडक्शन लेवल कम कर देंगे. इसीलिए पूरा वापस कहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल में? जहां था वहां पे, दैट इज एट इक्विलिब्रियम लेवल. समझ में आ रहा है ये? दैट्स द फर्स्ट कंडीशन. ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. Now what is going to happen? The stability of the equilibrium will be restored at point E. Thus, when AD is less than AS, national income tends to fall. National income गिरेगी. यानी आप अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो नेशनल इनकम जो ON पे थे वो फॉल होकर कितने पे आ जाएगी? OY. यानी इट इज गोइंग टू रिड्यूस. नाउ वो ग्राफ भूल जाओ. नाउ द सेकंड कंडीशन वी आर गोइंग टू सी. व्हाट विल हैपन? तो उल्टा कंडीशन होगा. तो AD इज मोर देन AS, राइट? और वैसी कंडीशन आपको कहाँ दिखती है? AD जब ज्यादा है, राइट, इक्विलिब्रियम के पहले दिखती है आपको. ध्यान से देखो, राइट, जहाँ पे मैंने प्लॉट किया PQ and L. Now this situation is shown by PL line. आप देख सकते हो PL line, राइट? मैंने नया एक लाइन प्लॉट किया यहाँ पे जो पहले हो रहा है इक्विलिब्रियम के पहले. क्लियर है?
नाउ एट दिस पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे पीएल लाइन इन फिगर, एट इनकम ऑफ ओएल, ओएल की इनकम पे आप देखोगे ध्यान से एग्री का डिमांड कितना है, डिमांड का ग्राफ जहाँ से जा रहा है, ये डिमांड का ग्राफ जा रहा है, राइट, वहाँ पे पॉइंट पी टच कर रहा है, राइट। सो कितना है, ये एग्री का डिमांड है पीएल पे, पी पे है, जबकि एग्री की सप्लाई कितना है, क्यू एल है, इसीलिए एग्री की डिमांड में इतना बोल सकता हूँ, जबकि एग्री की सप्लाई कम है, क्यू एल ही है, राइट, इतना ही बोल सकता हूँ। सो इट इज क्लियर दैट एडी इज मोर देन एएस, उसका मतलब आपको गैप दिखेगा एक्सेस डिमांड का, राइट, जो मैंने ब्रैकेट से बताया आपको, और गैप कितना है, वो पी क्यू जितना गैप है। दिस विल ब्रिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, इससे क्या होगा, लोगों की डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखो लोग डिमांड कर रहे, सप्लाई है नहीं, जैसे कि कांदे की डिमांड बहुत है, कांदे की मार्केट में सप्लाई नहीं है अगर, तो क्या होगा, तो द पीपल हु आर गोइंग टू सेल दोस ऑनियंस इन द मार्केट, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा दाम मांगेंगे आपको, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हु विल एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन आज कम है तो लोगों को लगेगा कि लोगों के कांदे के मार्केट में बहुत कमाई है, आपको यानी ग्रो करने के लिए 30 रुपए लगता है, राइट, मार्केट में 80 रुपए बिकता है कांदा, तो क्या जरूरत है और कुछ प्रोडक्शन करने की, कांदा प्रोड्यूस करें, तो लोग क्या करेंगे, लोग सब प्रोड्यूसर्स नेक्स्ट टाइम पीरियड में वही चीज जिसका भाव ज्यादा है मार्केट में वो ज्यादा बनाएंगे। द इंक्रीज इन आउटपुट, उससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा एंड विल रेज द इनकम लेवल, इनकम लेवल भी बढ़ेगी, और इनकम लेवल कहाँ से आएगी, तो वो बोलेगे ओएल लेवल की जो इनकम जो थी वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वापस ओवाई पे आ जाएगा, कहने का मतलब वापस हम इक्विलिब्रियम स्टोर कर देंगे। The stability of the equilibrium will be restored at point E. Point E पे equilibrium स्टोर हो जाएगा, right? Where AD is equal to AS, जहाँ पे AD is equal to AS आज भी है। Thus when AD is more than AS, जब AD more than AS होता है तो नेशनल इनकम टेंड टू इंक्रीज, जो आप देख सकते हो OL से बढ़ के कितनी हो गई है, OI पे, समझ में आ रहा है ये? यस सर। राइट, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसका वीडियो में मैं रखूंगा आपको। नाउ एक स्केड्यूल से समझा देता हूँ, AD and AS अप्रोच विद अ स्केड्यूल, राइट। समझ लो, लेट एक कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास 1000 प्लस 0.67y और एक सेविंग फंक्शन है -1000 प्लस 0.33y, बराबर है ना, क्योंकि 0.67 अगर MPC है तो 0.33 MPS हो जाएगा, राइट। और ये सी बार यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ये तो आप समझ सकते हो, अभी तक हमने देखा कंजर्वेटिव फंक्शन और सेविंग फंक्शन को। अभी इसके बेसिस पे से मैंने एक स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल थोड़ा वास्ट है पर इसको समझने की कोशिश हम करते हैं इनकम से, फर्स्ट कॉलम से, पूरा स्केड्यूल मत देखो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने इनकम लेवल पे क्या किया है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, इनकम धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, राइट, पहले 2700 थी, बाद में 300 रुपये बढ़ा दिया मैंने, राइट, बाद में वापस 300 बढ़ाया, 3300, 3600, समझ में आ रहा है ये? सो व्हाट आई हैव डन इज 2700 की इनकम को मैंने धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया है, क्लियर। अभी मैंने ये आ गया इनकम हमारा, राइट, दिस इज नॉट गिवन, ये हमको बनाना पड़ता है द फर्स्ट कॉलम, बाकी सब कुछ हमको पता चलेगा, और ये एक चीज हमको बनानी पड़ती है, और दूसरा हमको ये मानना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट है, और वो कितना है, फिक्स है 200 रुपये का। ये दो चीज हमको खुद लिखनी पड़ेगी। सो कॉलम 1 एंड कॉलम 4, रिमेंबर कॉलम 1 एंड कॉलम 4 हैज टू बी गिवन, या फिर हमको अपने हिसाब से बनानी पड़ेगी। Now on the basis of this column 1 and 4, we are going to find out the entire AS and AD schedule. कॉलम 4 है क्या, कॉलम 4 है प्लान इन्वेस्टमेंट, और प्लान इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमने प्लान किया है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कुछ भी हो जाए हमने ये सोचा है कि हम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हर साल हमारी इनकम जो बढ़ रही है, ऐसा हम मानते हैं कि 2700 के कभी 3000 हो सकती है, कभी 3300 करोड़ हो सकती है, तो 300 करोड़ के गैप में हमारी इनकम बढ़ रही है।
नाउ आई हैव अ प्लान कंजम्पशन, और कंजम्पशन मेरा कंजम्पशन फंक्शन पे से आया है. सो अगर मैं ये इनकम को, दैट इज वाई को, ये फंक्शन में डाल दूं, कौन सा फंक्शन में, ये ऊपर वाले फंक्शन में मैं डाल दूं, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये आंसर. डाल के देखते हैं. 2700 इंटू 0.67 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1800, राइट. 0.67 यानी 2/3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1800 मिलेगा. प्लस 1000 कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2800 मिलेगा ना. यस और नो, Yes, sir. राइट. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि योर प्लान कंजम्पशन किस पे डिपेंडेंट है, आपके कंज्यूमर फंक्शन के ऊपर डिपेंड है. वैसे ही अगर आप देखोगे तो यू गेट द सेम आंसर्स, राइट, इन ऑल दिस वैल्यूज, जिसमें आपने, मैंने y की वैल्यू पे क्या लगा दिया है, हर वक्त आउटपुट लगा दिया है हर एक में. समझ में आ रहा है. देन ओनली आई गेट ऑल दिस फंक्शंस. सी, इसलिए मुझे सी की वैल्यू मिल जाती है इससे. नाउ आई गॉट अ सी वैल्यू, कंजम्पशन मिल गया. और मुझे पता है कि सेविंग होता क्या है. या तो मैं सेविंग में ये फंक्शन भी लगा सकता हूँ, राइट, या फिर मैं सेविंग ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि इट इज 1 - 2, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन. मेरे इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस करूँ तो मुझे सेविंग मिल जाएगा. यस, दोनों तरीके से मेरे आंसर आएंगे. तो अगर नीचे से देखें तो पहले डिस सेविंग हो रहा है, बाद में जीरो सेविंग हो रहा है, यानी ये है ब्रेक इवन पॉइंट. ये क्या आया हमारा, ये है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, राइट. उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेविंग बढ़ रहा है, राइट. एज यू गो अप द सेविंग इज इंक्रीजिंग. ये क्लियर हो रहा है. कॉलम 3, Yes, sir. right. Now column 4, as I said, it's given, right. Come back to column 5. Column 5 है क्या, column 5 is nothing but column 5 is aggregate supply, right. और सप्लाई होता क्या है एक्चुअल में, इकोनॉमी में सप्लाई होता क्या है, वो आउटपुट ही होता है. तो मैं बोल सकता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई और कुछ नहीं है, मेरा आउटपुट ही है. और इकोनॉमिक्स में आउटपुट और इनकम एक ही चीज बोली जाती है, तो मैं उसको इनकम भी बोलूँ, इसको आउटपुट भी बोलूँ, इज वन एंड द सेम थिंग, राइट. सो एग्रीगेट सप्लाई इज एग्जैक्टली द कॉलम 1. तो 5 कॉलम जो है, 5th कॉलम, वो 1 कॉलम ही. सो आई गॉट एग्रीगेट सप्लाई, राइट. और मुझे इक्विलिब्रियम के लिए एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड चाहिए. नाउ द सेकंड इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इज, राइट. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड इज. सो अगर एग्रीगेट सप्लाई को दूसरे तरीके से अगर मुझे देखना हो, राइट, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, C+S. तो देखो यहाँ पे C+S को ऐड कर दो तो भी आपको एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगा हर एक लेवल पे. मिल रहा है. एग्रीगेट सप्लाई C+S ही होता है ना. यस, समझ में आ रहा है एग्रीगेट सप्लाई सबको. सो आइदर इट इज अ कॉलम 1, वो आउटपुट ही है, राइट, और यू कैन टेक C+S. नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या है, C+I. तो दिस इज C, दिस इज प्लान इन्वेस्टमेंट, दिस इज I. तो इट इज व्हाट एग्रीगेट. अगर मैं डिमांड बोलूं तो दिस प्लस दिस, this plus this. yes, समझ में आ रहा है ये. Yes, sir. so this is aggregate demand, right. now वो एक्चुअली में उसको शॉर्ट में लिखो तो इट इज नथिंग बट C+I ओनली. सो नाउ आई टू सी कि कहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे, दैट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट. और अगर आप देख सकते हो तो वो इक्वल हो रहे 3600 करोड़ के डिमांड पे, 3600 करोड़ की आउटपुट होगी, दैट इज सप्लाई होगी. तो वहीं पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, एंड दैट इज माय क्लियर इक्विलिब्रियम पॉइंट. ना उससे पहले क्या होता है, उसके पहले अगर आप देखोगे तो सप्लाई ज्यादा है, राइट, डिमांड कम है. तो उसका मतलब है कि सप्लाई ज्यादा होगा तो आउटपुट टेंड्स टू डिक्रीज, आउटपुट कम होती जाएगी. यहाँ पे इक्विलिब्रियम यानी इक्वल टू है. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है. अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो आउटपुट टेंड टू इंक्रीज. अल्टीमेटली होगा क्या कि दोनों ही आउटपुट अल्टीमेटली 3600 लेवल पे आके ही खड़ी हो जाएगी, बिकॉज दोनों ही स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं है, दोनों में ही
इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा, इट इज ओनली एट 3600 लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, राइट। और जहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो प्लान इन्वेस्टमेंट और प्लान सेविंग भी इक्वल है। देखो हमारा नेक्स्ट अप्रोच यही है, SNI अप्रोच। समझ में आ रहा है? Yes, sir. So let's understand the next approach. So this is what I've explained with the help of a schedule. मैंने बहुत कुछ यहाँ पे थियोरी नहीं लिखी है, स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और राइट, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम आपको शेड्यूल से समझाने की बोलते हैं। अभी ये ADS अप्रोच तो है ही है, साथ ही साथ ये SNI अप्रोच भी है, राइट। So let's understand the ADS अप्रोच का कंक्लूजन लास्ट में, what it is. In Keynesian theory, केनीजिज्म की थियरी अगर हम समझते हैं, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज डिमांड डिटरमाइंड, और डिमांड से डिटरमाइंड होती है, राइट। याद रखिए, यानी वो बोलते हैं कि डिमांड ही विलन है और डिमांड ही हीरो है, राइट। अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो डिमांड बढ़ाओगे तो डेफिनेटली लोग ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे बढ़ाना, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मार्केट में से माल खलास हो जाएगा, अगर मार्केट में से माल खत्म हो जाएगा तो सप्लाई को नया माल बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। सो नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इज अज्यूम टू बी गिवन एंड कांस्टेंट। एग्रीगेट सप्लाई का कोई रोल नहीं है केन्स की थियरी में शॉर्ट रन में, वो बोलते हैं सप्लाई शॉर्ट रन में बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट रहती है। दस इट इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड व्हिच इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ आउटपुट। ये एग्रीगेट डिमांड ही है जो आउटपुट को बढ़ाता है, राइट, इज नॉट अ सप्लाई। If AD for the goods and services rises, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में से माल खाली हो जाएंगे, मार्केट में से अगर माल खाली हो गए तो सप्लाई क्या करेगी, प्रोड्यूसर के पास मांगेंगे कि लाओ गुड्स लेके आओ। गुड्स आएगा कहाँ से, तो उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा लोगों को, राइट। सो दिस विल रेज द लेवल ऑफ आउटपुट, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का आउटपुट बढ़ेगा, और इन टर्न अगर लोगों की एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, राइट। इसीलिए ये थियरी का नाम थियरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जा रहा है। Thus, there is a direct relationship between aggregate demand and level of employment, output and income. इसीलिए ऐसा बोला जा सकता है कि एग्रीगेट डिमांड का सीधा सीधा संबंध किससे है, रोजगारी से, उत्पादन, आउटपुट से और इनकम से। समझ में आ रहा है? Yes? Yes, sir. Fine. That's it for today. I'm not going to go further. There is one more approach, that is what I call this INS approach, right? Investment and saving approach, जो हम उसको कल देखेंगे, investment saving approach को, right? अच्छे से समझेंगे। It is a similar kind of approach as AD and AS approach, पर यहाँ पे डायग्राम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के नाम से दिखा जाएगा। Fine, that's it, beta. We'll meet tomorrow with the INS approach. There are 2 or 3 more sessions for this chapter, and then this chapter is get over. Clear है ये? Yes, sir. Yes, sir. Fine. I'm closing the session now. Tomorrow we'll meet again with INS approach. Thank you, beta. Goodbye. Take care. Bye, sir. Bye.